today's session. Today we are here for match the column questions, but so this is our fifth session for economics, and I hope you're really enjoying the sessions that we have already covered. So we've covered art of answer writing, which is very crucial and which is very helpful specifically for the upcoming sessions that Navneet sir would be taking. So he would be taking your 3-marker, 4-marker questions, and he would also be taking 6-marker questions. How do you answer that? So content is similar for everybody, but what actually matters is how you write, how you present your answers so that it holds that relevance. So that is the reason that we conducted art of answer writing in the first session itself. So you know all the tips and tricks so that you can apply in the upcoming sessions. Then we also covered assertion reason questions. We learned rule 1, rule 2, rule 3. You were playing some games during the session. If you haven't seen the videos, if you haven't watched the recordings, so I would really urge you to go to aspiration.ai, and in the recording section, please go and watch the sessions because those are very interesting sessions. We actually played a game sort of thing. And during, while playing that game, we actually solved the questions. We learned the techniques, and it was very helpful. Then we also learned how to solve case studies by 2 methods, one conventional and traditional method, but the other one is the new method when you are running short of time. So how do you answer case study questions? So that is also there. You can always go and access that. In the session 2 we covered all of it. In the session 3 we covered diagram, picture, graph, database questions, because those are not only 1 markers, but such questions also come under 3 mark and 4 marks questions. And also we learned during that session, with the same content that we had, we also learned how to present our answers. So I showed you the techniques and everything, like how do we solve it. And then last session of the previous session, fill in the blanks questions, standalone MCQs was taken by Navneet sir, and in a very interesting sort of manner, he took that session and we played kind of a game of KBC and we solved the question. So if you haven't watched, as it I'll mention again, please go to aspiration.ai, and I'll also show you towards the end of our session that from where can you access the recordings if you're not able to. Do watch those videos and come back to these things. And if you're here for today, so we are going to do match the column questions. You would be saying that match the column questions are so easy. Why are we supposed to do it? So see, I've covered match the column from every chapter. So I'll show you the techniques, how to solve it. And meanwhile, we'll also cover major concepts. So if you're done and thorough with today's class, you'll definitely be solving every match the column question coming in your exam. Trust me. And a special pro tip, आज की क्लास में जो मैच द कॉलम क्वेश्चंस है, those are not only exclusively helpful for CBSE board exams, but also ये आपको एक added advantage दे रहा है आज का सेशन कि अगर आपने आज का सेशन कर लिया है ना, so match the column questions you're also able to cover for CUET. Okay, so this is a plus, this is a bonus, and I'm hopeful that you would be very excited for it. So I think lots of introduction for today is done. So let me just share the screen, and let's begin with our today's class, which is about, as in again I'm mentioning, match the column questions. All right, so let's just begin this session. As I said, this is session number 5 and we are going to start with it. Okay, so know the rules, as in when I say that, since you're live on YouTube and we are here, so you can watch me through YouTube and you can ask your questions also. But if you are not live with me right now, so then I would urge you to put your questions in the comment section and I'll still be able to watch it. Otherwise, Telegram group, we have a dedicated Telegram group for economics where daily we post a quiz at 2 p.m. and we daily post the answers of that quiz at 9 p.m. Okay, and that group is very active. Trust me, we have a lot many students there. They keep on asking their queries, which are very helpful for the other students also. So you can ask those queries. You can ask any question, any problem you're facing. Just feel free to post. No doubt is silly. No doubt is small. Trust me, we are always there to help. I am there. Navneet sir is there. We are there to help you, to cater your needs. So just feel free. And for today, just use the chat box to answer or to ask anything, and just be respectful. Okay, maintain the decorum. You can talk to each other, you can answer each other's queries, but in a respectful manner. Okay, so no more such rules. And I'm sure you'll be taking advantage of the Telegram. So let's just move ahead with the session. And
paper pattern as in again I mentioned, so I'll go through run through it very quickly because I think मैं हर सेशन में कर रही हूँ, लास्ट सेशन में नवनीत सर ने भी किया था. So हम लोग आपको बार बार ये चीज बता रहे हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों हमने ये जो सेशंस प्लान किए हैं ये थीम बेस्ड किए हैं. ठीक है. सो मैच द कॉलम क्वेश्चंस 1 मार्कर्स में आते हैं, बट इसमें भी दो तरह के आते हैं मैच द कॉलम. आई विल शो यू, ऑप्शंस वेरी करते हैं जहाँ पे, एंड देन यू कैन जस्ट एक्सेस. तो आज के में मैच द कॉलम, बट मैंने जैसे आपको बोला कि आज वाली क्लास सिर्फ सीबीएसई पर्पस से तो हेल्पफुल है. सो आज के क्वेश्चंस अगर आपने सारे कर लिए, सिंस दे आर कवरिंग एवरी चैप्टर एंड एवरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सो वो तो आपका कवर होगा ही, लेकिन साथ में आज की क्लास की एडेड एडवांटेज सबसे बड़ी ये है कि आप सीयूईटी के मैच द कॉलम भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने आज की क्लास प्रॉपरली अटेंड कर ली तो. या फिर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो आपने एक या मे बी 2 बार रिकॉर्डिंग देख ली है, तो आप बहुत आराम से पूरी की पूरी सीयूईटी में जो भी मैच द कॉलम क्वेश्चन आएंगे, ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स, आप बहुत इजीली कर पाएंगे. ऑलराइट. सो आपके 1 मार्क क्वेश्चंस आएंगे, 23 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चंस व्हिच इज टोटल वेटेज 12 मार्क्स. देन 4 मार्क्स के क्वेश्चन 6 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल वेटेज 24 मार्क्स, एंड 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि टोटल वेटेज है 24 मार्क्स. टोटल पेपर 80 मार्क्स का है, क्वेश्चंस 34. आई होप ये तो अब तक क्लियर हो गई. हम इतने पेपर दे चुके हैं, इतनी बार ये सारी बातें कर चुके हैं, सो अब तक ये चीज तो हमें क्लियर है ही पूरी तरह. ओके. सो आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मैच द कॉलम क्वेश्चन के आप ऑप्शन देखेंगे ना, कुछ ऑप्शंस में सिर्फ लिखा होता है कि शायद एक ऑप्शन करेक्टली मैच है, बाकी इनकरेक्टली मैच है, तो उसमें लिखा होता है A1, B2, C3 एंड D4. वो थोड़े से सिंपल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ कॉम्प्लिकेशन तब आती है जब आपको पता है कि हर किसी का कुछ ना कुछ करेक्ट आंसर तो है. ठीक है. तो अब इन ऑप्शन से आपको पिक करना है करेक्ट आंसर. अब इसमें जरूरी नहीं आपको चारों चीजें पता हो. करेक्ट हो सकता है आपको यहाँ पे सारे ABCD नहीं पता, इसमें से 3 पता है पर 1 नहीं पता. हो सकता है आपको यहाँ पे सारे 1 2 3 4 नहीं पता, एंड दैट इज कंप्लीटली ऑल राइट. आई मीन यू शुड नो एवरीथिंग बिकॉज आपने इतना पढ़ा है. बट अगेन हो सकता है कभी कभी हमें नहीं आता, तो भी हम करेक्ट आंसर पे आ सकते हैं मैच द कॉलम में. हम आज यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है. सो अगर मैं यहाँ पे आपको बात करूं कि मे बी आपको 1 2 चीजें भी पता है, हम ऑप्शन एलिमिनेशन करते चलेंगे. ठीक है. जो हमें पता है इनकरेक्ट मैच है उसको फटाफट एलिमिनेट करो, ताकि कई बार होता है हमें करेक्ट आंसर नहीं पता, बट अब क्योंकि सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं हम ऑटोमेटिकली करेक्ट आंसर पे आ जाते हैं. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. ओके. सो एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं लिखा है नेशनल इनकम. एनडीपीएफसी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. करेक्ट. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. पहले तो आप लोग खुद भी ट्राई करते रहिए. सो यूट्यूब पे आप लोग अगर चैट बॉक्स में जुड़े हुए हैं, आप हेलो हाय लिख सकते हैं, एंड आप आंसर लिखने वाले हैं तो आप प्लीज इसका आंसर ट्राई करिए, लीस्ट अटेम्प्ट करिए. आप यूट्यूब पे मेंशन करिए कि आपको क्या लग रहा है इसका आंसर होगा. Meanwhile, I'm saying NDPFC is net domestic product at factor cost. Correct. Similarly, NDPMP is net domestic product at market price. NNPFC, net national product at factor cost, and GNPFC, gross national product at factor cost. ठीक है. सो मैंने आपको इन चीजों की फुल फॉर्म बता दी, विच आई एम ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग कि आपको पता होगा, बट स्टिल अगर नहीं पता है सो आई एम श्योर कि आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं. ऑलराइट. सो एनडीपीएफसी ऑब्वियसली जब मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, फुल फॉर्म में अब मैं एकदम लॉजिकली चलेंगे. आज वी विल प्ले, वी डू इट इन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट. सो जस्ट थिंक व्हाट इज द फुल फॉर्म? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. करेक्ट. सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है भाई, डोमेस्टिक है, सो नेशनल इनकम तो नहीं हो सकता, तो A1 से मैच तो नहीं हो रहा है हमारा. राइट. एनडीपीएफसी और किससे मैच हो रहा है? एनडीपीएमपी. चलो देखते हैं. डेप्रिसिएशन प्लस हो रही है तो ये तो ग्रॉस बन रहा है, सो ये भी मैच नहीं हो रहा, सो 2 भी हट गया. ना A1 है ना A2 है. देखते हैं डोमेस्टिक इनकम. यस, डोमेस्टिक इनकम इज ट्रू. सो इफ आई एम श्योर कि एनडीपीएफसी जो है वो मेरा डोमेस्टिक इनकम होता है, 3 का मैच A के साथ हो गया है. ठीक है. अभी तक मुझे एक ही चीज पता है कि 3 का मैच जो है वो A के साथ हुआ है. All right. So अगर ये मैच हुआ है, so what will I do is the thing that I'll do is कि यहाँ पे A में मैं देखूंगी 3 कहाँ का है. अब यहाँ देखो A3 डेफिनेटली है, so ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, एंड C ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया.
ओके, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया. व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद 50-50. केबीसी में खेलते हैं ना 50-50. सो मैंने आपके लिए ऑलरेडी इजी कर दिया गेम. दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं. नाउ यू आर लेफ्ट विद टू ऑप्शंस. एंड नाउ सिंस यू लेफ्ट विद टू ऑप्शंस, यू हैव बी एंड डी. सो अब कुछ और भी पता करते हैं. अगर मुझे बी का भी पता लग जाए कि 4 है या 1 है, तो भी मेरा आंसर आ सकता है. डी डेफिनेटली 2 है दोनों ऑप्शन में, तो डी देख लेते हैं. GNPFC यहाँ पे 2 दिखा रहा है. लेट्स गो. NDPMP N है, N में हम डेप्रिसिएशन प्लस कर रहे हैं, G बन गया. फिर हम ND में NFI मैच कर रहे हैं, N बन रहा है. P तो P ही रहेगा. MP से हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर रहे हैं, तो ये हमारा फैक्टर कॉस्ट बन गया GNPFC. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. दिस इज हाउ यू अराइव एट द करेक्ट पॉइंट. सो डी तो 2 है, लेकिन हम ना भी करते ये तो हमें पता था दोनों ऑप्शन में D 2 ही बचा है. हमारे पास देखने के लिए क्या है? बी और सी. तो हम बी पे चलते हैं. बी क्या है? NDPMP. NDPMP यहाँ पे चेक करो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो नेशनल इनकम तो नहीं है, ठीक है, 1 नहीं है डी. यानी डी जो आपका बी है दैट इज नॉट 1. इसका मतलब बी जो है वो 4 है. करेक्ट. देख लो, जी है, जी से डेप्रिसिएशन माइनस किया, एन आ गया. डी से, डी में आपने डी ही रहने दिया, कुछ भी नहीं माइनस प्लस किया, डी ही रहा यहाँ पे. आपने पी, पी ही रहा. एंड एफसी में आपने नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस किए हैं, सो दिस बिकम्स एमपीएस. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो बी इज ऑप्शन 4. एंड व्हेन बी इज योर ऑप्शन 4, सो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बचता है? Yes, students, what is the correct answer? So the correct answer given by Daksh is B, and which is absolutely correct. The correct answer here is option B. All right, correct answer क्या है आपका? Option number B. This is how you arrive at the correct answer. एलिमिनेशन टेक्निक करो. दो ही चीजें पता होनी जरूरी थी हमें. अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ ए और बी के बारे में भी पता था तो भी मैं करेक्ट आंसर पे आ गई. मुझे चाहे सी और डी ना भी पता हो, इट डजंट मैटर. अगर मुझे ए और बी पता था, मेरा काम फिर भी हो गया. All right, I hope you've got this. Now let's go to another question. Next question पे चलते हैं. Okay, so look at this question, and this is a little complicated, but I'm hoping you would know this. So what happens is real flow, then flow, money flow, and stock. So तीन टाइप के flow दिख रहे हैं आपको students. Real flow, flow, money flow, and stock. Correct? Understood? So यहाँ पे क्या हुआ? Real flow क्या होता है? रियल फ्लो एक्चुअली में होता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज फर्म्स और हाउस होल्ड में. इसमें मनी एक्सचेंज नहीं आता. ठीक है. अब मनी एक्सचेंज जिसमें आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नॉमिनल फ्लो कहते हैं. ठीक है. मनी एक्सचेंज जहां पे भी आ जाता है वो नॉमिनल फ्लो हो जाता है. और फ्लो, सिर्फ फ्लो और स्टॉक की बात करें, सिर्फ फ्लो और स्टॉक की बात करें, तो स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है. वी टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, whereas flow is actually during a period of time. Okay, so मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट जब बता दिए हैं, so I'm sure you'll be arriving at the correct answer, and I really hope, please answer everybody. So what is the correct answer? And if you're watching the recorded session, so just pause this recording and please try and attempt every answer first by yourself, और उसके बाद मेरी explanation सुनो और मेरे आंसर्स देखो कि करेक्ट आंसर क्या है. बट पहले हर क्वेश्चन के बाद ट्राई एंड पॉज द वीडियो, और उसके बाद आप ट्राई करो कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. All right, because I know that many of you actually don't attend the live session but watch it recording. ठीक है, रिकॉर्डिंग देखते हो इसकी, तो इसी वजह से वो रिकॉर्डिंग देखना, उस पर पॉज कर देना. ओके, सो करेक्ट आंसर ढूंढते हैं. रियल फ्लो मैंने कहा जैसे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड्स. सो आई नो ए तो 2 है. जैसे ही मुझे पता चला ए 2 है, लेट मी स्टार्ट. ओके एवरीवन, स्टूडेंट्स, सी, लुक एट द ऑप्शंस. As and when I know कि real flow of goods and services between household and firms है, look at the options, my friends. A1 एलिमिनेट हो गया है यहाँ पे. जस्ट होल्ड ऑन. या A एलिमिनेट हो गया क्योंकि A1 नहीं है. A4 एलिमिनेट हो गया क्योंकि A4 नहीं है. A3 एलिमिनेट हो गया क्योंकि A3 नहीं है. जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन. हमें सिर्फ पता था कि A रियल फ्लो क्या है और हम उससे करेक्ट आंसर पे आ गए जो कि है C. ओके, यू गॉट इट. सी कैसे आ रहा है करेक्ट आंसर? अब देख लेते हैं सी में क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं कि सी सही आंसर है नहीं है. सो ऑप्शन एलिमिनेशन, ए एलिमिनेटेड, बी एलिमिनेटेड, डी एलिमिनेटेड. वी हैव द करेक्ट आंसर एज सी. A2 है.
यानी रियल फ्लो जो है वो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। फ्लो जो है मेरा दैट इज अ वेरिएबल मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसी को हम फ्लो बोलते हैं एवरीवन। ओके, B3 है करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। मनी फ्लो नॉमिनल फ्लो है, तो सी जो है आपका 4 है, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्टॉक 1 है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया है? आपका करेक्ट आंसर आ गया है सी। ओके, करेक्ट आंसर सी आ गया है। यहाँ पे देख भी सकते हो आप, आपके सामने एक पिक्चर है कि फैक्टर मार्केट और गुड मार्केट है, हाउस होल्ड और फर्म है। तो अगर सिर्फ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज देखूंगी, दिस इज रियल फ्लो। ओके, एंड नॉमिनल फ्लो मनी का फ्लो है, जो इनकम है एंड स्पेंडिंग है। मॉनेटरी फ्लो उसको हम कहते हैं मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। ओके, आई होप यू गॉट दिस। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन, जिससे आपने नेशनल इनकम की कुछ कुछ मेजर चीजें कवर कर ली। स्टॉक वर्सेस फ्लो कवर कर लिया, मनी फ्लो रियल फ्लो क्या होता है वो कवर कर लिया, एंड जो आपके एनडीपी एनएनपी एंड जितने भी आपके जो भी इंडिकेटर्स होते हैं आपने ये कवर कर दिए। ओके, नाउ मनी एंड बैंकिंग पे आ जाते हैं। मनी एंड बैंकिंग पे आके देखो, यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है। सो आई वुड रियली वांट कि आप लोग भी इसका आंसर करो एवरीवन। सो ट्राई एंड आंसरिंग this question, this particular question. ओके, बैंक रेट क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, सेंट्रल बैंक क्या होता है। तो अगर मैं देखूं, मुझे सेंट्रल बैंक पता है क्या होता है, और मैं यहाँ पे ऑप्शंस देखूं, सेल एंड परचेज, ठीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा। लॉन्ग टर्म मुझे नहीं समझ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। मुझे बस ये पता है कि सेंट्रल बैंक जो 4 है ना, उसका करेक्ट आंसर बी है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन। सो व्हाट आई स्टार्ट इज, आई स्टार्ट एलिमिनेटिंग। मैं दिमाग ही क्यों लगाऊं 4 ऑप्शन में, मैं पहले एलिमिनेट तो कर दूं ना। सो सी है, जो 4 है 4B है, ये करेक्ट है। अब 4B ढूंढता है, 4B, माय गॉड, लुक आई हैव अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर आई फील। यस, 4 के साथ आप देखो D, D, C, यानी D भी नहीं है, D भी नहीं है, C भी नहीं है। भाई मुझे तो पहले ही 4 भी पता था, मुझे सिर्फ 4 भी पता था, एंड आई हैव अराइव्ड एट द करेक्ट आंसर। That is what I was saying when I was pointing out at the particular theme, कि हम लोग करेक्ट आंसर पे आना सीखेंगे। मैच द कॉलम में इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको सब कुछ आता हो, आना चाहिए, ठीक है। सो एथिकली मॉरली आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आपने पूरा 1 साल पढ़ाई की है, आपने बहुत एफर्ट किए हैं, बिल्कुल आना चाहिए। अगर नहीं भी आता, इट्स ओके, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी करेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। डोंट एकदम से उसको देख के ओवरवेल्म नहीं हो जाना कि ओ माय गॉड मुझे तो आता ही नहीं। You know everything, trust me, you know everything. Even if you don't know, still you know something about the question. जैसे मुझे यहाँ पे सिर्फ 4 पता था, अब मैं स्टूडेंट बन गई आपके साथ, मुझे पहली 3 चीजें बिल्कुल नहीं पता थी, मुझे 4th चीज पता थी। 4 मुझे पता था बी है डेफिनेटली। अब 4B से मैं करेक्ट आंसर पे आ गई, पर फिर भी बाकी चीजें चेक कर लेते हैं। सो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट आपका बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन होता है जो RBI कमर्शियल बैंक को देता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सो मुझे लग रहा है कि 1 जो है वो सी है। 1 देख लो, पहले ऑप्शन, हमें पता है पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया है, 1 सी है, एब्सोल्युटली सी है। 2 बोल रहा है डी है, मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। ऑब्वियसली कोई डिपॉजिट कर रहा है और उससे आपका जो मनी है वो क्रिएट हो रहा है, मनी क्रिएशन हो रही है। सो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। देन 3A हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है आपका, वो हो गया सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये आपको क्लियर है ये चीज क्या हो रही है? मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से करेक्ट आंसर पे आना सिखा दिया, एंड आवर करेक्ट आंसर इज ए। ऑल राइट, आर वी डन विद दिस? आर वी क्लियर कि क्या हुआ यहाँ पे, क्या कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हुआ है? ओके, देन सेम मनी एंड बैंकिंग से, क्योंकि अभी कुछ रेट रह गए थे, बट बैंक रेट अब आपको पता है। सो व्हाट आई एम होपिंग इज प्रीवियस क्वेश्चन के बाद आपको कुछ पता हो ना पता हो, लुक एट द बैंक रेट, लॉन्ग टर्म रेट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। मुझे सिर्फ बैंक रेट आता है, मुझे और कुछ नहीं आता। मुझे मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पता क्या है, मुझे रिवर्स रेपो नहीं पता, मुझे रेपो नहीं पता। आई एम अ स्टूडेंट जस्ट लाइक यू। मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ एकदम पेपर आते ही सामने, पर मुझे सिर्फ बैंक रेट पता है क्या होता है, ठीक है। तो मैं बैंक रेट को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI लेंड्स टू फॉर लॉन्गर पीरियड, यस, ये मुझे लग रहा है कि 3 का जो है वो डी है। सो 3D, आई एम श्योर कि 3D है। लेट्स स्टार्ट एलिमिनेटिंग 3D, 3D। oh my god, look, we arrived at the correct answer. Oh no, 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 look, we have 2 options. Okay, okay, okay everyone, A eliminated, D eliminated, 3D, 3D.
ओके, सो 4C यानी 4 का C है, मॉनेटरी पॉलिसी, पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये भी पता है। अब हमें दो चीजें पता है, हमें 1 और 2 देखना है, ठीक है। रेपो एंड रिवर्स रेपो, ओके, कंफ्यूजन आ गई, अब तो रेपो और रिवर्स रेपो पता ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारा काम ऑप्शन एलिमिनेशन ने नहीं सॉल्व किया है, सो वी नीड टू नो द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो। ओके, सो दिस इज हाउ आई मीन कि जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में एलिमिनेशन काम आ जाए स्टूडेंट्स, सो यू कांट ऑलवेज डिपेंड कि आपको नहीं पता, आपको एक चीज पता है और आप हमेशा सॉल्व भी कर लोगे, सो डोंट ऑलवेज थिंक दैट ऑल्सो, बट ऐसा भी नहीं है कि सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो, दैट यू हैव एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड यू कैन अराइव एट डिफरेंट आंसर्स। Okay, so repo rate is rate of interest at which RBI provides short-term credit to commercial bank, whereas one definition is rate of interest payable to commercial bank on their surplus deposit with RBI. See, रेपो रेट और बैंक रेट में एक ही फर्क होता है, दोनों में ही आरबीआई जो है वो लोन देती है कमर्शियल बैंक को, बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए देती है, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए देती है। वेयर एज रिवर्स रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो में जो एक्सेस जो सरप्लस होता है कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक वो रख देते हैं आपके आरबीआई के पास एंड आरबीआई उस पर आपको इंटरेस्ट देती है, ठीक है। सो दक्ष इज सेइंग कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। 1A ऑप्शन सी में 1 का क्या जा रहा है, रेपो रेट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच, नो, so okay, Daksh, correct answer is actually B. Okay, why B? Because repo rate क्या है, repo rate वो rate of interest at which RBI provides short term credit to commercial banks. Okay, so correct option क्या हुआ मेरा, correct option हुआ B। मैं मैच करके दिखा देती हूँ। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू कमर्शियल बैंक। रिवर्स रेपो होता है rate of interest payable to commercial bank on their surplus deposit with RBI, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेट हो जाता है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक हो जाती है, यानी आपका क्या हो गया 1B 2A 3D 4C। You know the correct answer now? I'm sure now you're clear about the correct answer, so no worries, no issues, let's move to our next question। अब आ गए एडीएएस के क्वेश्चंस पे। सो एडीएएस के क्वेश्चंस देख लो यहाँ पे। एडीएएस में क्या है, y इज इक्वल टू एडी। y इज इक्वल टू एडी क्या होगा, इंक्रीज इन इनकम होगा, नहीं। विल विद इंक्रीज इन एमटीएस टोटल से, नो। एमपीसी जीरो होगा, नो। सो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, बिकॉज y is equal to AD means AS is equal to AD, because हम बोलते हैं कि aggregate supply 45 degree line होती है and it is Y, so that is why AS is equal to AD, which is equilibrium level of output. So I know कि 1C है, मुझे एक चीज क्लियर हो गई कि 1C है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑप्शन एलिमिनेशन शुरू करेंगे 1C पता लगने के बाद। 1C, चलो जी, हमारा ऑप्शन ही आ गया है, एंड आई थिंक यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हमें दिख रही है स्क्रीन पे, सो आई थिंक फॉर दिस यू वुड हैव टू कम एट 1A, बट इट्स ओके, लेट्स लुक एट C। Okay, so I think there's some error on the screen, but if you still see you've arrived at the correct answer almost, because 1B नहीं है, 1D नहीं है, we're sure 1C है। So let's look at the other options। Forward multiplier क्या होता है, forward multiplier is basically when increase in income with addition to investment, so when you're adding to investment increase income हो रहा है। backward multiplier क्या हो जाता है कि आप कम कर रहे हो इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से आपकी इनकम कम हो जाती है, ठीक है। सो फॉरवर्ड मल्टीप्लायर इज A, सो 2A है, डेफिनेटली आई हैव अराइव्ड एट माय करेक्ट आंसर व्हिच इज B। B में क्या बोल रहा है कि 1 जो है आपका वो C है, करेक्ट। सो 1C आई नो, देन आई नो फॉरवर्ड मल्टीप्लायर इज A, सो आई नो 2A है। देन आई नो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इज, यू नो, इट इज इन एनसीईआरटी। So students, NCERT holds a great importance not only in CUET but also in CBSE, because जो NCERT में boxes दिए होते हैं ना, उस boxes में से बहुत सारे questions आते हैं आपके। So trust me, paradox of thrift आपकी NCERT में है। Please try and read every box in the NCERT because वही आपको edging score देगा। Paradox of thrift में क्या कहते हैं कि MTS increase हो भी रहा है, marginal propensity to save increase हो भी रही है, तो भी आपकी saving जो है overall वो increase नहीं हो रही है।
ठीक है। सो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या कह रहा है कि आपका विद इंक्रीज इन एमपीएस टोटल सेविंग डज नॉट इंक्रीज। तो आई नो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट यानी 3 जो है वो बी है। एंड आई नो के मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है 1/1 माइनस एमपीसी। सो इफ आई नो के इज इक्वल टू 1 which means 1 minus MPC is equal to 1, which means MPC is equal to 0, and यहाँ पे MPC is equal to 0, which means multiplier K is equal to 1. So आपका जो 4 है that is D. ओके, सो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया है? मेरा करेक्ट ऑप्शन आ गया है बी। ऑलराइट, मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया है? करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, सो दैट इज द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन which is saving less than. So I would really want कि आप लोग भी इसमें आंसर करने का ट्राई करो. Just try answering this question. What do you think about this particular question? What do you think should be the answer of it? Everyone try solving. Okay, so saving less than investment. सेविंग अगर कम है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, सो प्लान इन्वेंट्री फॉल होगी या लो होगी डिजायर्ड लेवल से, क्योंकि सेविंग कम है। ओके, दैट इज द थिंग। मुझे ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट क्या है, बट अगर मुझे ये सब नहीं भी पता, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट, सो आई ओनली नो 1/1 माइनस एमपीसी मल्टीप्लायर होता है। मुझे बस इतना पता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है, मुझे इतना पता है, बाकी चीजों में आई एम जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड एज अ स्टूडेंट। सो व्हाट विल आई डू? आई नो बी का जो है वो आंसर 4 है। आई एम श्योर बी 4 है। लेट्स स्टार्ट एलिमिनेटिंग। ओके, B4 ओके फाइन। सो B3 दिख रहा है ए में, ए तो करेक्ट आंसर नहीं है। सी भी नहीं है बिकॉज B2 दिख रहा है। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस जहां मुझे पता है A3 है। सो A डेफिनेटली 3 है। दे आर सेइंग A3 मतलब ओके A3 एंड B4 है। वी आर श्योर B4 है, A3 है। अब पॉइंट रह गया, पॉइंट ऑफ डिस्कशन C एंड D में। ठीक है, C एंड D में डिस्कशन का पॉइंट रह गया। सो व्हाट वील डू इज नेशनल इनकम विल फॉल। कब आउटपुट फॉल करेगा? जब एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड जब कम है एग्रीगेट सप्लाई से तो नेशनल इनकम फॉल करेगी। आई एम श्योर C क्या है? C is 1. तो आपका ADAS at point less than full employment, under employment equilibrium, absolutely D क्या है? 2 है। Are we at the correct answer? D 2 है, C 1 है, B 4 है, A 3 है। My correct answer is B. All right students, my correct answer is B. Okay, let's move to next question, which is question number 7. ओके, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? एपीसी क्या होता है? सो इसमें ना हम एडीएस के कॉन्सेप्ट सीखेंगे मोर देन सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, बट आई एम रियली होपिंग आपको इसमें से कुछ ना कुछ पता होगा। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? इफ एट ऑल आपको नहीं पता, एपीसी, ठीक है, एपीसी आपको पता है। अब यहाँ पे हम लिखते जाएंगे एपीसी क्या होता है? एपीसी इज C/Y। ओके, एमपीएस है, एमपीएस चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम। एपीएस क्या है? एपीएस क्या है आपका? एपीएस इज इक्वल टू S/Y। ओके, सो यहां पे क्या बोल रहा है? कैन, ओके, कैन टेक वैल्यू 0 एंड 1। 0 एंड 1 के बीच तो एमपीएस वैल्यू ले सकता है, बिकॉज वी नो एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0 और 1 के बीच में वैल्यू लेते हैं। ठीक है, सो आई नो कि जो एमपीएस है यानी 3 है, उसका आंसर डी है। 3D अगर आ गया है तो व्हाट विल आई डू? आई स्टार्ट एलिमिनेटिंग। 3D मुझे 2 ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं ऑप्शन सी एलिमिनेटेड, ऑप्शन डी एलिमिनेटेड। मेरा करेक्ट आंसर ए और बी में से कोई है, पर मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ। आपका जो ये है एपीसी, कैन एपीसी बी मोर देन 1? कैन बी मोर देन 1? देखते हैं। अगर मोर देन 1 होगा इट मींस C ग्रेटर देन Y। कैन इट हैपन? एब्सोल्युटली इट हैपेंस। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो क्या होती है? वो होती है कि इनकम से भी ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो पुरानी सेविंग्स यूज करके। डेफिनेटली कैन बी मोर देन 1। सो आई एम श्योर 2 का ए है। 2 का ए है।
तो यहाँ 2A है, C 1 है. आई हैव ऑलरेडी अराइव्ड एट माय करेक्ट आंसर विच इज B. बट C का D क्यों है आपका? ओके, C D है, करेक्ट, दैट इज ऑल्सो वी नो. APS, APS का आंसर है आपका जो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है. ऑल राइट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो आपका 4 है, 4 is actually B, can never be equal to 1. Why can APS, which is F by Y, can never be equal to 1? Because saving equal to income, which means consumption is 0. Because why? Because saving plus consumption is equal to Y. And अगर saving is equal to हो जाएगी यानी consumption 0 होगी. Can consumption ever be 0? Everybody, can consumption ever be 0? No. Why? Because autonomous consumption हमेशा होती है, consumption 0 नहीं होती. So saving can never be equal to 1. All right, I hope you've got this. Where are we coming from? So that is how. So break even point क्या हुआ? Break even point पे saving is equal to 0 होती है, consumption जितनी है वो income के equal हो जाती है. Okay, so that is your break even point. So what is the correct answer? Correct answer is B. Okay, correct answer is B. Let's move to next question, everybody. Public good दिया है, progressive taxation दिया है, expand demand दिया है, and natural monopoly. Okay, so I'm waiting for the answers now. Who's giving me answer? For this particular question, कौन आंसर देने वाला है? Try, attempt. एक try तो बनता है. So try doing this question. Public good क्या होता है? And ये ना यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया है कि basically ये गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. So ये गवर्नमेंट बजट से, ये गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, और कौन से ऑब्जेक्टिव में गवर्नमेंट क्या रोल लेती है ये वो है. So now do this. I've given you enough hints. Try solving this. Who will give me answer of this one? I am actually live on YouTube. I'm looking at the chat box. I'm waiting for the answers to come. Who's going to answer? Yes, everyone, try solving this one. So public goods. Public goods गवर्नमेंट के कौन से फंक्शन में आता है? बेसिकली कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो गवर्नमेंट को पता है कि गवर्नमेंट खरीद नहीं पा रही है, ठीक है, या लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, गवर्नमेंट की बात नहीं होती. आई विल करेक्ट माई सेल्फ. यहाँ पे लोग कुछ गुड्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं विच दे शुड एक्चुअली हैव. तो ऐसे में गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि कुछ गुड्स, जैसे जो पब्लिक गुड्स हो गए, बेसिकली आपके जो गुड्स हो गए, जैसे पार्क का हो गया, या कुछ भी ऐसे पब्लिक गुड्स हो गए, रेलवेज हो गया, कुछ चीजों का ना गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है कंट्रोल. ओके, बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू एलोकेट certain goods amongst everybody, non-rivalrous, non-excludable. Those are the public goods, and वो public goods गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे सबके पास जाए. वो गवर्नमेंट के एलोकेशन फंक्शन में आता है. सो मुझे एलोकेशन फंक्शन दिख रहा है थर्ड, और मुझे पब्लिक गुड दिख रहा है ए. सो पब्लिक गुड हुआ 3, यानी A3 है. A3 आई एम श्योर अबाउट. A3, 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 okay. So B eliminated, A eliminated. 50-50 तो हर किसी में हो रहा है. अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, इसमें D2 भी कॉमन है, यानी नेचुरल मोनोपोली क्या है? नेचुरल मोनोपोली इज टू मैनेज पब्लिक एंटरप्राइज. ठीक है, ओके, करेक्ट. डी भी पता लग गया. अब मैटर का रह गया प्रोग्रेसिव टैक्स और एक्सपैंड डिमांड. प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों लगाएगी गवर्नमेंट? प्रोग्रेसिव टैक्स लगाएगी रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में, क्योंकि जिनकी इनकम जितनी ज्यादा बढ़ रही है वो उतना ज्यादा टैक्स दे. रीडिस्ट्रीब्यूट ना, आप जिसकी इनकम ज्यादा है उससे टैक्स ज्यादा ले रहे हो, जिसकी इनकम कम है उससे कम ले रहे हो. ठीक है, सो यू आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग इन अ वे. So that is why progressive tax actually goes under option 4. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? C4D2. तो करेक्ट ऑप्शन what I am seeing is actually, I think there's some error here. Yes, तो आपका B यहाँ पे दिखा रहा है. Okay, the error is from my end. The option basically is, यहाँ पे आपका option correct is C.
So if we actually remove this, what I've said is public good आपका क्या हुआ? Public good आया allocation function में. Okay, public good आया allocation function में, which means A का क्या हुआ हमारा? A का correct option हुआ 3. Progressive tax किस में आया? Redistribution function में. B का क्या हुआ? 4. C का क्या हुआ? एक्सपैंड डिमांड का, और ये स्टेबलाइज करने के लिए. सो C हुआ मेरा यहाँ पर 1. ओके, एंड D क्या हुआ? C 1 हुआ, D मेरा हुआ 2. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? A 3, B 4, C 1, D 2. करेक्ट आंसर इज everyone C. Yes, absolutely. So Daksha has mentioned it correctly that the correct answer is C. Okay, correct answer is C. And I hope you've got why correct answer is C. Okay, let's move to our next question, which is 9th question. यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट. ओके, हम गवर्नमेंट बजट पे आ गए हैं. हम पहले ही आ गए थे. एलोकेशन हमने फंक्शंस भी देखे, गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव भी देखे हमने. अब यहाँ पे आ जाते हैं हम कि गवर्नमेंट के डेफिसिट्स किस तरह के होते हैं और उनका क्या मतलब होता है या इम्प्लीकेशन क्या होता है. ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, बैलेंस बजट. सो अगर मुझे बैलेंस बजट सही पता है, इसका मतलब ना सरप्लस ना डेफिसिट. एक्सपेंसेस जितने हैं वो रिसीट के इक्वल है. सो यहाँ पे मैं देख लेती हूँ बोरोइंग टू, बोरोइंग. तो ये तो बैलेंस बजट में नहीं आ रहा. आई थिंक गवर्नमेंट स्पेंडिंग अमाउंट इक्वल टू रेवेन्यू. तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू जितने हैं, रिसीट है, उतने गवर्नमेंट के खर्चे हैं. तो ये तो बैलेंस हो गया. तो आई थिंक कि मुझे पता है कि डी का जो ऑप्शन है सही वो 2 है. अब डी 2 है, लो डी तो सब में ही 2 है. एलिमिनेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज्ड एटलीस्ट विद D2. यू गॉट दिस. एलिमिनेशन टेक्निक खाली आप यहाँ यूज नहीं कर सकते अगर आपको सिर्फ पता है कि डी का आंसर 2 है. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग्स. यहाँ पे मुझे पता है ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी. चलो कुछ और देखने की कोशिश करते हैं. फॉर दैट मैटर आई नो फिस्कल डेफिसिट क्या है, कि वो बोरोइंग, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट दिखाता है. सो मुझे वो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? 4. तो मुझे पता है बी क्या हो गया? 4. टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेस, दैट इज फिस्कल डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट क्या होता है आपका? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस total receipts, non-debt creating because excluding borrowing. यानी ये दिखाता है कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से कितना ज्यादा ऊपर खर्चा कर रही है, कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करने की जरूरत है. तो गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स कौन दिखाता है? फिस्कल डेफिसिट. तो बी का करेक्ट आंसर क्या हुआ? 4. अब एलिमिनेट हो रहा है? यस, एलिमिनेट हो रहा है. यहाँ पे ये भी चला गया, बी और सी ऑप्शन. तो अब मुझे देखना है ए में और सी में रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट टू फाइनेंस कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट की बेसिक कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, बिकॉज बेसिक रेवेन्यू भी नहीं काम हो रहा आपका. और फिर प्राइमरी डेफिसिट क्या हो गया? बोरोइंग ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन अर्लियर लोन्स. क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो इस साल का है माइनस जो आपने लोन लिए हुए हैं, तो बेसिकली इंटरेस्ट पेमेंट कितना देना है आपको, वो चीज मैटर करती है प्राइमरी में. तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? ए और डी में से व्हाट इज माय करेक्ट आंसर? एनीवन इन द चैट बॉक्स? एनीवन वुड वांट टू आंसर? What would be the correct answer? So basically यहाँ पे जो मुझे करेक्ट आंसर लग रहा है मेरा, वो है डी. कि ए जो है आपका, ए ऑप्शन आपका है 3. ओके, सो ए इज 3, बोरोइंग ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट कमिटमेंट ऑन अर्लियर लोन्स. ओके, आर वी क्लियर? आई एम श्योर वी आर. ओके, लेकिन इसके लिए फिर भी ये सारे डेफिसिट्स एंड ये सारे पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये डेफिसिट के फॉर्मूले क्या है और इनका इम्प्लीकेशन क्या है, यू शुड थरो विद इट. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक्साइज टैक्स क्या है, कस्टम ड्यूटी क्या है, पेपर टैक्स क्या है एंड स्पेसिफिक टैक्स क्या है. ठीक है, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? चलो ऑप्शन कॉलम बी पढ़ लेते हैं. कॉलम बी कौन सा है? कॉलम बी हमारा ये पूरा कॉलम है, इसको पढ़ते हैं, देखते हैं.
इम्पोज्ड ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, ये तो मुझे पता है कस्टम ड्यूटी है। जैसे ही मुझे ये पता चला कस्टम ड्यूटी है, तो 1 का ऑप्शन क्या हुआ, बी। तो B1 है, एलिमिनेशन करके देखें, B1 चलो, A एलिमिनेट हो गया, C एलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शन बचे, A यानी 3 है, एक्साइज ड्यूटी, ओके, लिवाइड और कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट साइज या वेट, यानी स्पेसिफिक टैक्स है, क्योंकि या तो स्पेसिफिकली वजन पे लग रहा है, वजन के हिसाब से लग रहा है, या स्पेसिफिक नंबर ऑफ कमोडिटी, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी परचेज कर रहे हो उसके हिसाब से लग रहा है, या उसके साइज के हिसाब से लग रहा है। सो 2 क्या हो गया, स्पेसिफिक टैक्स। डी क्या हो गया है, डी इज 2, D2 का आ रहा है, इसमें आ रहा है, यानी मेरा करेक्ट आंसर बी आ गया है। पेपर टैक्स क्या होता है, टेल यू, ड्यूटीज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री इज एक्साइज टैक्स, और आपका पेपर टैक्स नेवर बॉट इन लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, गिफ्ट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया। सो ये सारे जो टैक्सेस हैं ये कभी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं लाए हैं, इसी वजह से इन टैक्सेस को कंबाइन कर कर गवर्नमेंट ने पेपर टैक्स का नाम दे दिया, क्योंकि पेपर टैक्स यानी ये पेपर पे है बस, लेकिन ये बहुत ज्यादा रेवेन्यू हमारे लिए नहीं लाए। ठीक है, सो माय करेक्ट आंसर इज बी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आर वी क्लियर ऑन दिस? Okay, let's move to our next question. Next question is column A, column B. अब ये ट्रेड की बात कर रहा है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज से क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ इनविजिबल, इनविजिबल का बैलेंस क्या होता है, यानी जो सर्विसेज है, ट्रांसफर पेमेंट, कुछ ऐसी चीजें जो दिख नहीं रही हैं, उनका बैलेंस। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में दोनों आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ इनविजिबल, यानी गुड्स एंड सर्विसेज भी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड सर्विस, बेसिकली गुड्स का भी एंड सर्विसेज का भी, ट्रांसफर पेमेंट भी। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स का, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सक्लूसिवली। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हो जाता है जो कि असेट्स या लायबिलिटी पे फर्क डालता है, वो वाली ट्रांजैक्शंस। ओके, सो बेसिकली बैलेंस ऑफ इनविजिबल एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये दोनों किसका पार्ट हो जाते हैं, ये दोनों हो जाते हैं आपके करंट अकाउंट का पार्ट। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ असेट, असेट तो किस में आती है, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही आती है, क्योंकि ये तीनों तो करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये तीनों किसकी बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट यानी 1, एलिमिनेशन करूं या ऐसे ही समझाऊं, चलो एलिमिनेशन करके देखते हैं, D1 है, ओके, तो एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, D1 से तो कुछ ज्यादा एलिमिनेट हो नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ ओनली गुड्स, सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, मैंने गुड्स किसमें का, बैलेंस ऑफ ट्रेड में। सो 3 जो है, जो C है, C इज 2, आई नो C2 है, आई नो D1 है, C2 आ रहा है एक में, यानी मेरा B जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ गया है। अब मैं नेक्स्ट पढ़ लेती हूँ, सर्विसेज ट्रांसफर फ्लो ऑफ इनकम, ये क्या हुआ है, बैलेंस ऑफ इनविजिबल हुआ, दिखती नहीं है ये, एंड गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट, ये हुआ आपका करंट अकाउंट। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन हुआ बी, जहां पे B4, C2 आ गया मेरा, ओके, C एब्सोल्युटली 2 एंड D1, ओके, सो माय करेक्ट ऑप्शन इज B। ऑल राइट, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन, कि आपके डेप्रिसिएशन, डीवैल्यूएशन, अप्रिसिएशन एंड रीवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर एक्सचेंज रेट या तो फिक्स्ड होता है या फ्लेक्सिबल होता है। अब एक्सचेंज रेट जब फ्लेक्सिबल होता है, यानी मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई कितनी है फॉरेन एक्सचेंज की, उस पर डिपेंड करता है, तो उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन आती है तो हम उसको डेप्रिसिएशन या अप्रिसिएशन कहते हैं। अब आपकी जो फॉरेन करेंसी हो गई, फॉरेन करेंसी कौन सी हो गई, फॉर एग्जाम्पल डॉलर हो गई, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, हमारी डोमेस्टिक करेंसी रुपी हो गई। तो अब आपको अगर $1 लेने के लिए इमेजिन 70 रुपीज देने पड़ रहा है, और अचानक से $1 लेने के लिए आपको 77 रुपीज देने पड़े, तो यानी अब $1 आपके लिए महंगा हो गया, 7 रुपए महंगा हो गया, आपकी करेंसी की वैल्यू तो कम हो गई ना, यानी हमारा जो रुपी है वो डेप्रिशिएट हो गया, ये डेप्रिसिएशन होता है।
अप्रिसिएशन कब होता है? अगर आपको $1 लेने के लिए 70 रुपीज देने पड़ रहे थे और अब $1 देने के लिए सिर्फ 65 रुपीज देने पड़ रहे हैं, यानी 5 रुपए बच रहे हैं आपके, आपकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो गई। अब आप कम रुपी में भी $1 ले सकते हो, पहले उस ज्यादा रुपी में भी आपको लेना पड़ रहा था। तो अब क्या हुआ आपका, अब आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई। लेकिन ये मार्केट फोर्सेस पे चल रहा है, कि गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे आ जाता है। फिक्स यानी फिक्स बाय गवर्नमेंट। जब सरकार फिक्स कर रही है एक्सचेंज रेट, ऐसे में अगर सरकार वैल्यू कम कर रही है तो रुपी की वैल्यू कम हो रही है, तो हम उसको यहाँ पे डिवैल्यूएशन कहते हैं। और वो रुपी की वैल्यू बढ़ा रही है तो उसको हम रीवैल्यूएशन कहते हैं। ओके, देख लेते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है, उसमें ऑप्शन कौन सा होगा देखते हैं। डेप्रिसिएशन बोल रहा है, अच्छा यहाँ देखते हैं। पहले हम कॉलम बी देखेंगे, इसमें पहले कॉलम बी पे फोकस करेंगे हम। कॉलम बी में 1 कह रहा है प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज इंक्रीज्ड। फॉरेन करेंसी का प्राइस इंक्रीज हो गया है बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन मतलब प्राइस फॉरेन करेंसी का बढ़ा दिया है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से। तो या तो रीवैल्यूएशन है या डीवैल्यूएशन है। डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन तो नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाय गवर्नमेंट इंटरवेंशन लिखा है। ठीक है, मार्केट फोर्सेस लिखा है, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हैज इंक्रीज्ड। ठीक है, लेकिन मार्केट फोर्सेस से मुझे क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, मेरा करेक्ट आंसर क्या है? मेरा करेक्ट आंसर है बी। ए मेरा है 2, यानी जो अप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे, यानी प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी महंगी हो गई है पर मार्केट फोर्सेस की वजह से। So Daksh is saying option D is the correct answer, and yes, absolutely option D is the correct answer. Why? Because depreciation price of foreign currency in terms of domestic currency has increased by the market forces. Devaluation में क्या हुआ? Devaluation में price of foreign currency तो कम हुआ, लाइन दोनों सेम है, लेकिन अब गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से हुआ। ठीक है, अप्रिसिएशन क्या हो गया आपका? प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी हैज इंक्रीज बाय द मार्केट फोर्सेस। सो दैट इज व्हाई मार्केट फोर्सेस का रोल है एंड यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन है। दिस इज द रीजन ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड दक्ष। तो दक्ष has answered it correctly कि ऑप्शन बी जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Exports of goods, remittances and grants, government aid, offshore funds. What do you think? क्या है export of goods? I can see export of goods मतलब trade in goods. अगर मेरे को पता है A2 है, क्या मैं elimination technique यूज कर सकती हूँ students? Can I use elimination technique? A yes or a no from your end? Can I use elimination technique? A2. Okay, no, I can't because I can only eliminate D, but I still have 3 options left. So A2 से तो काम नहीं बन रहा है। B से देख लेते हैं, रेमिटेंसेज एंड ग्रांट। रेमिटेंसेज और ग्रांट मिल रही है, वो वन साइडेड पेमेंट है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हो। सो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, या चलो मेरे को पता है ऑफशोर फंड जो है मेरा, ऑफशोर फंड है वो इन्वेस्टमेंट है, ये मुझे पक्का पता है कि दैट इज इन्वेस्टमेंट। ओके, सो देन माय ऑप्शन सी इज आल्सो एलिमिनेटेड। नाउ आई एम लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शंस। अब गवर्नमेंट एड और, मुझे डिफरेंस क्या है, गवर्नमेंट एड में क्या फर्क होता है, रेमिटेंसेस एंड ग्रांट में क्या फर्क होता है? गवर्नमेंट एड आपकी एक्सटर्नल असिस्टेंस होती है। गवर्नमेंट एड एक्सटर्नल असिस्टेंस होती है, तो आपकी सी जो है वो 1 हो गया, विच मींस ऑप्शन ए जो है मेरा वो करेक्ट हो गया। बिकॉज रेमिटेंसेस और ग्रांट जो बाहर रह रहा है वो आपको भेज रहा है, पर उसके बदले आपने कुछ नहीं किया है। सो माय करेक्ट ऑप्शन इज ए। Okay, I hope we are done. We are clear with this. That our correct answer is A. Okay, let's move to our next question. Question number 14, जो कि बोल रहा है growth, modernization, self-reliance and equity. Let's see. अब कॉलम बी पढ़ते हैं पहले। ये एक एक वर्ड से तो कुछ नहीं पता चल रहा, कॉलम बी पढ़ लो।
अवॉइड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस हो सकते हैं उसका इंपोर्ट मत करो बाहर से। सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर डिपेंड हो, आत्मनिर्भर, ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड हो, जो गुड्स यहाँ पे बन सकते हैं उनका इंपोर्ट मत करो। तो सेल्फ रिलायंस सी मुझे पता है क्या है, 1 है। C1 एलिमिनेशन, बी एलिमिनेटेड, ए एलिमिनेटेड, आई एम लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन में सेकंड पड़ता है, मीट बेसिक नीड ऑफ एवरी इंडियन, ये ग्रोथ है, आई एम नॉट श्योर। मॉडर्नाइजेशन तो नहीं है। इक्विटी, इक्विटी यानी इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब सबकी बेसिक नीड्स पूरी करो, ये आई एम श्योर डी से 2 मैच हो रहा है। अब डी 2 मैच हो रहा है तो मैं कहां पर आ गई, तो मैं ऑटोमेटिकली ऑप्शन सी पर आ गई, दैट माय सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, फिर भी आगे देख लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, इंक्रीज इन कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री या अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। न्यू ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ होता है कंट्री की कैपेसिटी बढ़ना, तो A3 हो गया आपका। एंड मॉडर्न क्या हुआ कि अडॉप्ट कर रहे हो नई नई टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो, उसको हम मॉडर्नाइजेशन कह देते हैं, ठीक है। सो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, let's move to our next question, and I would really want कि इस question का answer आप लोग try करो, so I'm giving you a minute to probably just look at the question and solve it, because I feel I'm not giving you ample of time to solve this one. So just solve this one, question number 15th, everyone try solving. Education, health, training, migration. कॉलम बी में ऑप्शंस है, 1 facilitates transfer of skills, option 2 increases labor productivity, 3 leads to brain drain, and 4th is improves quality of life. Any answers, anyone? Yes, everyone. YouTube chat live. Okay, so let's start figuring out. I know migration leads to brain drain. ब्रेन ड्रेन क्या होता है मैं भी आपको 2 मिनट में बताऊंगी, बट मेरे को पता है कि डी जो है माइग्रेशन, या चलो आपको नहीं पता ब्रेन ड्रेन क्या है, लेट्स लीव इट। हेल्थ देखते हैं, हेल्थ से मुझे पता है स्किल्स और लेबर प्रोडक्टिविटी का लेना नहीं है, ब्रेन ड्रेन का भी नहीं है, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जरूर इंप्रूव होती है अच्छी हेल्थ से। सो दक्ष इज सेइंग ऑप्शन डी इज करेक्ट। लेट्स जस्ट लुक एट ऑप्शन डी नाउ। आपको पता है इंप्रूव इन क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हेल्थ से, यानी आई नो B4 है, कैन वी एलिमिनेट? Okay, no, we can't. We can only come to option. We can only like eliminate B, but still we are left with 75% of the work to be done. Okay, so आप क्या करेंगे? ठीक है, एजुकेशन देखते हैं। एजुकेशन से स्किल ट्रांसफर, ट्रेनिंग से स्किल ट्रांसफर होता है, मुझे ये पता है। तो सी क्या हो गया? सी हो गया 1। C1 होने से भी सिर्फ यही एलिमिनेट हुआ, अभी भी वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस। एजुकेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और माइग्रेशन से ब्रेन ड्रेन होगा। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन जो मेरे आगे आ गया दोनों में से, अभी भी सी और डी में से, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ब्रेन ड्रेन देख लो क्या होता है। ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू इंटरनेशनल ट्रांसफर ऑफ ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज एंड इट अप्लाइज मेनली टू माइग्रेशन ऑफ highly educated individuals from developing to developed countries. ओके, सो दैट इज द थिंग। क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्रेन ड्रेन क्या है कि आपकी हाईली एजुकेटेड इंडिविजुअल्स चले गए डेवलपिंग से डेवलप कंट्रीज में, और जिनको आपने यहाँ पे पढ़ाया लिखाया वो आपके बाहर चले गए और बाहर का रिसोर्स बन गए जाकर। ओके,
Is it clear what is brain drain? Let's move to 16th question. लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म, इंडियन इकोनॉमी पे आ गए हम, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आ चुके हैं. सो लैंड सीलिंग, लैंड रिफॉर्म, ग्रीन रेवोल्यूशन, marketed surplus. 1 minute you have to solve this question. And quick students, it's a 1 marker, so I don't expect कि आपको बहुत ज्यादा टाइम लेना चाहिए. एलिमिनेशन लग ही जाता है, हिट एंड ट्रायल लगा लो. ठीक है, वैसे तो आना ही चाहिए. ग्रीन रेवोल्यूशन चलो आपको पता होगा, HYV सीड्स का यूज करना, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, तो ऐसा कुछ देख लेते हैं. ऐसा कोई ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन बाय यूजिंग HYV. लो पहला ही दिख गया 1. तो मैं तो अभी बता ही रही थी, बट मुझे पता चल गया कि सी का 1 है. मैं देखूं एलिमिनेशन यूज कर पा रहे हैं. C1 ओके, B एलिमिनेट हो गया, A एलिमिनेट हो गया. वी आर स्टिल लेफ्ट विद C एंड D. ओके, वी आर स्टिल लेफ्ट विद C एंड D. अब C और D बचा है जब मेरे पास, सो C और D में से करेक्ट आंसर क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन तो पता है, आगे देख लो. पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सोल्ड इन द मार्केट, ये तो मार्केटेड सरप्लस है, तो D हो गया मेरा 2. D2 आते ही मैं करेक्ट आंसर पे आ गई, विच इज C. तो इसमें लैंड सीलिंग क्या होता है? सीलिंग मतलब आपके ऊपर, अगर आप अभी एक रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हो तो सीलिंग ऊपर वाले, ऊपर जब देखोगे तो ऊपर सीलिंग है, मतलब उतना लेंथ जा सकती है रूम का, मैक्सिमम लिमिट हाइट. ठीक है, सो लैंड सीलिंग क्या हुआ? फिक्सिंग मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड होल्डिंग फॉर एन इंडिविजुअल इज लैंड सीलिंग. लैंड रिफॉर्म, चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड, यानी पहले जमींदारी सिस्टम था, अब वापस से जो टिलर्स है जो काम कर रहे हैं, जो फार्मर्स हैं जो सॉइल पे काम कर रहे हैं, वही उसके ओनर होंगे. ये लैंड रिफॉर्म. ऑल राइट, so I hope you've got this. Option number C, Daksh is saying is correct. Absolutely Daksh, option number C is correct. ठीक है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट है. Right. So we've already done 16 questions. We still have 9 questions to go. Okay, try in answering those questions. As and again, I'm saying these are the questions very important for your CUET purpose also. CUET में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यही सब है जिसमें से आएगा. सो आपका इन वे CUET की भी तैयारी हो रही है. CUET के एटलीस्ट मैच द कॉलम क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं. ट्रस्ट मी, आई हैव एनालाइज्ड CUET एक्चुअल मॉक्स एंड एक्चुअल पेपर्स एंड आई कुड फिगर आउट कि CUET बहुत अच्छे मैच द कॉलम बना रहा है. बेस्ड ऑन दैट ओनली मैच द कॉलम ऐसे हैं जो CBSE, क्योंकि आपको पता है CBSE भी पैटर्न चेंज कर सकता है, वो बहुत हद तक फॉलो करेगा CUET को. सो हमने मर्ज किया आपके लिए कि आपको सब आता हो. ठीक है, वी मर्ज्ड एवरीथिंग फॉर यू, वी आर केटरिंग टू योर नीड्स. और ये आपने कर लिया तो आई एम श्योर आप मैच द कॉलम का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे. ओके, सो फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग एंड स्पेकुलेशन, क्या होता है ये सब? चलो फॉर अब कॉलम डी पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? कॉलम डी पढ़ेंगे. मिक्सचर ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट तो नहीं होगा, फ्लोटिंग भी नहीं होगा एग्जैक्टली. मैनेज फ्लोटिंग यस, क्योंकि फ्लेक्सिबल एंड फिक्स का मिक्सचर. सो आई नो C1 है. C1 आते ही मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रही हूँ क्या? A और B कर पा रही हूँ. अभी भी C और D में से बचा है चूज करना. ठीक है, B4 है, ये पता लग गया. C1 है और B4 है. B क्या है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस. ठीक है, अब क्या है? फ्लोटिंग पता लग गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट देख लेते हैं. एक्सपेक्टेशन ऑफ गेन फ्रॉम अप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी डिटरमिन्ड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कौन सा डिटरमिन करती है? गवर्नमेंट आपका डिटरमिन करती है. अब यहाँ पे आप देखो A का जो करेक्ट आंसर है विच इज 2. So this would be this question I feel needs a little correction everyone. So just try correcting it because इसका जो एक चीज आएगा यहाँ पे, आपका जो है ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा, ना कि फॉरेन एक्सचेंज रेट. ठीक है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा आपका. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है वो गवर्नमेंट डिटरमिन होता है. स्लाइड करेक्शन. सो क्वेश्चंस में भी कई बार ट्रिक आ जाती है, पर नहीं भी पता तो एटलीस्ट आपको स्पेकुलेशन पता है कि आप गेन एक्सपेक्ट कर रहे हो अप्रिशिएट होने से करेंसी का, ये स्पेकुलेशन कर रहे हो. तो अगर आप ये भी देखोगे 3 चीजें तो भी आप करेक्ट डी पर आ जाओ. ठीक है, क्वेश्चन में कुछ एरर भी है ना,
तो भी आप डी करेक्ट ऑप्शन पे आ गए अगर आपको ए में कंफ्यूजन। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। Okay, so let's move to our next question. Solar power, gobar gas, biopest control, biocomposting. Column B, earthworms, photovoltaic cells, neem, and rural areas. So I'm giving you a minute, everyone. Try and solve this question. Give me the correct answer for this one. You have a minute, everybody. ट्राई करो इसको सॉल्व करने का। Answer in the chat box, YouTube. Okay, let's start solving this one. Solar power, I'm sure photovoltaic cell है। सोलर पावर आई एम श्योर फोटोवोल्टाइक सेल है, यानी ए का जो करेक्ट है वो 2 है। ठीक है, ए का करेक्ट आंसर अगर 2 है तो मैं एलिमिनेट क्या कर पा रही हूँ, आई कैन एलिमिनेट बी, आई कैन एलिमिनेट सी। ठीक है, आई एम स्टिल लेफ्ट विद ए एंड डी। ए और डी बचा है, तो अब यहाँ पे और देख लेते हैं। ए तो 2 है, ये तो मुझे पता लग गया है। अब बी देख लेते हैं, बी भी 4 है, जैसे बी इज 4, यानी गोबर गैस रूरल एरिया में होती है। ठीक है, बी भी 4 है। अब मुझे सी और डी में से देखना है, बायोपेस्ट कंट्रोल एंड बायोकंपोस्टिंग। बायोकंपोस्टिंग किससे होती है, अर्थवॉर्म से। बायोपेस्ट कंट्रोल कैसे होता है, नीम से। सो सी जो है हमारा वो 3 होगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ पर, माय करेक्ट आंसर इज एक्चुअली आंसर ए। यस, कबीर इज एब्सोल्युटली राइट, द करेक्ट आंसर हियर इज ए। वेरी गुड कबीर, द करेक्ट आंसर इज ए। Okay, let's move to next question. आंसर करने की ट्राई करो। Before I start solving this one, try solving it by yourself. I'm giving you a minute. Yes, students, I'm waiting for your answers in the chat box. Please answer question number 19. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज कब हुआ था, ये क्वेश्चन आता ही आता है। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, सीयूईटी में या तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाएगा पूछ के, वो आपको ईयर के थ्रू, वो आपको ईयर नहीं देंगे उसमें, बस आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे और आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करनी होंगी कि पहले ईयर में कौन सा आया, दूसरे में कौन सा आया। तो इसके लिए जरूरी नहीं है, पर आपको ये ईयर्स पता होने बहुत जरूरी है। These years you should know. These are very important. So this is an important question. इसीलिए मैं आपको ये नहीं बोलती सब कुछ लर्न करो, पर जहां जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कबीर इज सेइंग ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, कबीर के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो आ जाओ देख लेते हैं कि इफ कबीर इज राइट और वी नीड अ लिटिल करेक्शन। ठीक है, आई वोंट कॉल हिम रॉन्ग, बट लेट्स सी कि क्या सही जवाब है इसका। सो रेलवे का इंट्रोडक्शन कब हुआ था, मे बी मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मुझे अगर पता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिफोर 1921 आई थी, सो इफ आई एम श्योर कि बी का 1 है, तो लेट्स एलिमिनेट। बी का 1 है, तो B1 होने से क्या हुआ, B1 होने से कबीर, ऑप्शन नंबर सी तो एलिमिनेट हो गया B1 होने से, एंड ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट हो गया। एक्चुअली हम अपने करेक्ट ऑप्शन पे आ गए और करेक्ट आंसर पे आ गए, सिर्फ और सिर्फ बी पता होने से। मुझे ईयर्स नहीं भी पता थे सारे तो भी, बट ये ईयर्स पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्लीज कबीर, लेट्स जस्ट करेक्ट आवरसेल्व्स, कहाँ पे गड़बड़ हुई है। फर्स्ट स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ए है, तो B1 है हमारा फॉर श्योर। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे कब हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुआ था 1850 में, सो हमारा जो ए है वो 3 है। ओके,
टाटा एंड स्टील कंपनी टिस्को कब आई थी आपकी? टिस्को आई थी 1869 में। सो सी आपका जो है वो 4 है। एंड स्विस किनाल कब ओपन हुआ था? 1907 में। सो डी आपका 2 है। A3, B1, C4, D2। करेक्ट आंसर बी। कबीर, आई होप इट्स क्लियर कि ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट है। I hope I made this point clear, Kabir. Please type a yes if you understand what I was trying to explain. And everybody who's watching the recording also later on, I hope you've got this, that why B option is correct and why not other options are correct. हमें सिर्फ पता था फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फिर भी हम सारे ऑप्शन एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शन पे आ गए बी पे। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में जो जो ईयर्स दिए और जो जो स्टेटमेंट दिए हैं, मार्क माय वर्ड्स, ईयर याद होने याद बहुत जरूरी है। सीयूईटी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन आई कैन से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट if you can understand the intensity of the this question holds and the importance this question has, so please इस क्वेश्चन के ईयर्स याद कर लो इन इवेंट्स के। मैंने देखा होगा आपने, मैंने क्लासेस में मोस्टली कभी नहीं बोला कि आप ये लर्न करो, आप ये लर्न करके जाओ। मैं हर चीज का आपको लॉजिक देने की ही कोशिश करती हूँ, बिकॉज लर्निंग करना पर्सनली मुझे भी नहीं पसंद था। बट ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके ईयर्स आपको पता होने चाहिए। एज इकोनॉमिक स्टूडेंट्स आपको पता होने चाहिए। सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रहा है, सीयूईटी एक्सपेक्ट कर रहा है, व्हाई नॉट? व्हाई टू गिव देम दैट 1 मार्क? ले लो ना, सब छीन लो उनसे। ठीक है, ओके। Let's move to our next question. So आपका next question अगर हम देखेंगे, so next question में यहाँ पर हमारा जो option है आपका, and I think there is, yeah, so if we have option number C, okay, so if we have a certain error in some of the questions, so we will be definitely correcting it during the recording. All right, but अगर कोई आपको एरर लगता भी है कि किसी ईयर में कोई एरर है, सो आप वो इवेंट्स के ईयर अपने आप देखो, लेकिन वो इवेंट कौन से ईयर में हुआ है उसको लर्न कर लो। Human error is always possible. I'm not denying and I'm not saying that I'm 100% correct. There might be some error here and there. So try looking for yourself. मैं बेसिकली ट्राई क्या कर रही हूँ आपको बोलने का कि दीज इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन इवेंट्स के ईयर्स प्लीज लर्न कर लो। ठीक है, दैट इज व्हाट ऑल आई एम ट्राइंग टू से। 1 year here and there could be an error, because I am also saying कि लर्न करना सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड इवन आई माइट नॉट, आई एम ऑल्सो ह्यूमन, ह्यूमन एरर इज ऑलवेज पॉसिबल। ऑलराइट, बट लुक फॉर द ईयर्स। ठीक है, देन वी हैव इंडिया, चाइना, सार्क इन पाकिस्तान। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। सो ये तो बहुत ही जनरल हो गया, यहां से तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि कॉलम बी में क्या होगा। सो कॉलम बी से ही पता लग सकता है। सो खाली फोकस कहाँ जाएगा? फोकस जाएगा हमारा कॉलम बी पे। ओके, कॉलम बी पे फोकस जाएगा मेरा। बट आई वुड रियली वांट कि आप लोग इसका आंसर करने का ट्राई करो। Okay, and everyone, in the previous question, I think there is some error definitely in this question, because Tisco was in 1907. Okay, so I agree with Kabir. I think Kabir had his point correct. And if at all we are correcting ourselves, so let's just look. Okay, so there is a certain error. Tisco happened in 1907 and Swiss Canal in 1869. So the slightest of error, don't go with option B. Okay, so your Swiss Canal opening 1869, Tisco in 1907, first stage 1921, and introduction of railway in 1850. Year correction everybody. So option and year correction. अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है? आई एम रियली नॉट श्योर। आपका ये बन रहा है, ओके, सो लेट्स लुक। ए बन रहा है आपका
लेट्स सॉल्व. A is 3, ठीक है, B is 1, करेक्ट, एंड C आपका जो है वो 2 है. सो यहाँ ऑप्शंस पे मत जाओ, ऑप्शन या क्वेश्चन में कुछ तो एरर है, लेकिन ये ईयर्स याद रख लो आप, ठीक है. ईयर्स में क्या मैंने आपको बताया है कि आपका ये 1850 है, फर्स्ट स्टेज बिफोर 1921 है, टिस्को आपका 1907 है, एंड स्विस कैनाल 1869. जस्ट नोट दिस माइनर करेक्शन. तो ये थोड़ा सा एक एरर हो गया हमारा एक इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि कुछ तो ऑप्शन या कुछ तो यहाँ पे ऑप्शन का गड़बड़ हुआ. एज आई सेड, ह्यूमन एरर इज ऑलवेज पॉसिबल, बट आई एम करेक्टिंग myself also and for you also the correct options in the correct years, because in events को और in events के years को याद रखना is very crucial. Okay, so I hope you noted this correction. क्योंकि now think, see, मैं आपके सामने बैठ के यहाँ पे एक एरर कर सकती हूँ, तो आपसे तो कितनी पॉसिबिलिटी है कि एरर हो सकता है. इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इवेंट्स को प्लीज इनके ईयर्स को याद रखो. ओके ओके, एंड आई होप आई मेड माय पॉइंट क्लियर. सो नाउ लेट्स मूव टू दिस क्वेश्चन. इन कॉलम बी पढ़कर एक बार कोशिश करो आंसर करने की. सो ग्लोबल रीजनल ग्रुपिंग, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, तो मुझे पता है इंडिया है. तो चलो 2 तो 1 हो गया, ए क्या हो गया मेरा, 2 हो गया. A2 can I eliminate? चलो B, C गया. A2, I'm left with option A and option D. Okay, let's look at the other things. Followed classical development pattern. I don't. Deceleration in all 3 sectors of the economy. ये मुझे पता है पाकिस्तान. तो मैंने कहा D तो भाई 3 है. D3, can I come to correct answer? Absolutely. This is also, so I am at my correct answer. Correct answer क्या हो गया मेरा, D. A2 है, B बोल रहा है 4 है. So यहाँ पर A जो है मेरा इंडिया, इंडिया is A and A is 2, largest democracy. China I know, and China I know the correct answer is D. China मेरा 4 है, followed classical development pattern. ठीक है. 60 जो है मेरा I know C, which is a regional grouping, global regional grouping. ठीक है, C1 है. एंड पाकिस्तान आई नो कि पाकिस्तान ने डिसेलरेशन देखा था इन ऑल 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. ओके, ऑल राइट. सो आई होप A B C D किसके साथ मैच हो रहा है, द लॉजिक इज क्लियर. ओके, कॉलम ए कॉलम बी अगेन. सो एक क्वेश्चन हमने पीछे देखा था जहां पे मैंने आपको ब्रेन ड्रेन बताया था क्या होता है, और ऑप्शन नंबर ए जो आपका माइग्रेशन है, वी आर श्योर कि ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज 3, बिकॉज हमने उसमें पढ़ा था कि ए तो ब्रेन ड्रेन है, माइग्रेशन आपका ब्रेन ड्रेन है. ऐसे में A3 है, तो A एलिमिनेट हो गया एंड D एलिमिनेट हो गया. आई एम लेफ्ट विद B and C. लेट्स लुक, लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है, population high growth rate, lack of proper manpower planning. Okay, so what do we think? Reduction in per capita economic growth. Okay, then imbalances between demand and supply of human resources, and what we have is mismatch. So anybody who's answering this one, anyone? Okay, so our correct answer is C. Why C? Because अब आपका B जो है, low level of academic standards, ये क्या होता है, mismatch. क्योंकि required skill जो है और academic standard जो है, अगर आपका लो लेवल होगा academic standard का, तो दोनों के बीच में जो required skill है और जो academic standard है, उसमें क्या होगा, आपका mismatch होगा. ठीक है, सो आपका B क्या हो गया, B हो गया आपका 4. देन पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट, आपका C क्या हो गया, रिडक्शन इन पर कैपिटा इकोनॉमिक. क्योंकि पर कैपिटा क्योंकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन गिव्स यू पर कैपिटा. तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो पर कैपिटा कम होगा. ऑल राइट, सो C क्या हो गया, C हो गया आपका 1. एंड D क्या हो गया, लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, तो D आपका हो गया यहाँ पे 2. Imbalances between demand and supply of human resource. Okay, justified. So you know why C is the correct answer. Great. Let's come to question number 22.
क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या है? सब देखो, ये आए थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस। यहाँ पे अभी तक आपको सारे ऑप्शन देखने थे कि किसका कौन सा सही है, कि थोड़े सिंपल फॉर्मेट के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे आपको पता है चार है, चार में से एक ही सही है, आपको सारे नहीं देखने। तो आपको सामने सामने वाला देखना है, ए का 1 ही देखना है, बी का 2 ही देखना है। ऐसा नहीं है कि ये सारे देखना है और यहाँ पे किसी का भी मैच कुछ भी होगा, ये सब नहीं देखना। ठीक है, सो ये थोड़े सिंपल लेवल क्वेश्चन है। मैंने पहले थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कराए और अब हम थोड़े सिंपल लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। इतनी हैवी डोज पहले ही ले ली है कि अब ये वाले क्वेश्चन तो आप लोगों को सॉल्व करने में कोई ज्यादा दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ऑल राइट, सो डुअल प्राइसिंग, डुअल प्राइसिंग का मतलब क्या है? आई डोंट नो, मे बी सेटिंग। तो डुअल प्राइसिंग का यहाँ पे क्या है? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। इससे क्या डुअल प्राइसिंग का कोई लिंक था? नो। सो A1 तो रॉन्ग हो गया। सेटिंग अप स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन चाइना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? We get to know, but to attract foreign direct investment, I think this is correct. Okay, so this is correct. Special economic zone set करी गई चाइना में ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। फिर भी हम ऑप्शन सी ऑप्शन डी पढ़ेंगे, लेकिन ऑप्शन सी ऑप्शन डी में आपको लास्ट क्वेश्चन में दिखाने वाली हूँ कि कम्यून सिस्टम क्या होता है। इट इज एक्चुअली कलेक्टिव फार्मिंग, so it is not backyard based industrial production unit. No, so C भी wrong है। And great proletarian cultural revolution, this is not collective farming, so this is also wrong. So D4 भी incorrect है। so मेरा correct answer क्या आया? correct answer आया मेरा B। okay, now let's look कि आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है आपका यहाँ पे। so स्पेशल इकोनॉमिक जोन, okay friends, this is not A का 1, ठीक है, D2 is correct। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन और स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेसिकली SEZ जिनको हम कहते हैं, SEZ आर स्पेशली मार्क्ड टेरिटरीज, जहाँ पे आपका क्या होता है? कंट्री दैट हैज मोर लिबरल इकोनॉमिक लॉज एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो एक आपने टेरिटरी डिजाइन कर दी आपकी कंट्री में, लेकिन उस पर्टिकुलर टेरिटरी में जो आपने मार्क करी है, जो आपके नेशनल बॉर्डर्स हैं उधर के, वहां पे उस पर्टिकुलर टेरिटरी में इकोनॉमिक लॉज जो है वो थोड़े ईज्ड आउट होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, आपकी ये पूरा चाइना है, इस पूरे चाइना में एक ये टेरिटरी इन्होंने मार्क कर दी, बॉर्डर्स वॉर्डर्स मार्क कर दिए कि भाई इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक टेरिटरी में लॉज जो है वो थोड़े इजी होंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जो ट्रेडिंग है वो इजी होगी एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ताकि इस पर्टिकुलर जोन में आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट कर पाओ। ठीक है, आई होप विद वी आर क्लियर विद द लॉजिक। देन वी हैव दीज इंपॉर्टेंट एक्ट्स एवरीवन। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या बोलता है? 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये क्या बोल रहा है? डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग नीड्स। नो, ए इज इनकरेक्ट, A1 तो गलत हो गया। पोषण अभियान मिड डे मील, जहाँ पे स्कूल्स में दिन में फ्री खाना जाता है ताकि लोग आए और एनरोल करें, लोगों को खाना मिले दिन में। गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट रूरल अनस्किल्ड वर्कर्स को। नो, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, बी इनकरेक्ट, बी भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप एल्डरली पीपल बाय गिविंग देम पेंशन। यस, दैट इज ट्रू। सो सी करेक्ट है, फिर भी डी पढ़ेंगे। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना इंप्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर। नो, क्या होता है फिर वाल्मीकि? मेरा करेक्ट ऑप्शन सी है, लेकिन इसमें हमारा करेक्ट आंसर और ये प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है? नाउ लुक एट द प्रोग्राम्स एंड देयर एक्सप्लेनेशंस। Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act provides at least 100 days of guaranteed wage employment in financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. ठीक है, ये MG नरेगा का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। पोषण अभियान मिड डे मील का क्या होता है? एड्रेस हंगर एंड malnutrition, increase enrollment, attendance in school, improve socialization among castes, provide employment at grassroots level, especially to women. ठीक है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जिसको हम NSAP भी बोलेंगे आगे। ठीक है, इन प्रोवाइडिंग सोशल असिस्टेंस बेनिफिट्स टू पुअर हाउसहोल्ड इन केस ऑफ ओल्ड एज। स्पेसिफिक बोला था हमने, ओल्ड एज हो गया, डेथ ऑफ ब्रेड विनर हो गया या मेटर्निटी। द NSAP एम्स टू इंश्योर मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड्स की ओल्ड एज है तो पेंशन तो दे दो, मिनिमम नेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना
ameliorating the conditions of urban slum dwellers living below poverty line by providing them dwelling units and facility of community toilet. Okay, so this is your Valmiki Ambedkar Awas Yojana. Objective पता लग गए? Okay, very good. Second last question. Export of goods and services, trade surplus, current transfer to rest of the world, portfolio investment. क्या सही है? तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है मेरा? एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेस एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, ये तो सरप्लस हो गया. दिस इज नॉट एक्सपोर्ट्स, तो ये तो रॉन्ग हो गया. तो ए का 1 तो नहीं है. ट्रेड सरप्लस, एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम. ट्रेड सरप्लस, गुड्स एंड सर्विसेज का सरप्लस, यानी एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ग्रेटर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये तो कहीं से भी इनविजिबल आइटम का पार्ट नहीं है. सो बी भी 2 नहीं होगा. ओके, फिर सी देख लेते हैं. करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्डेड एज पॉजिटिव आइटम इन बीओपी. करंट ट्रांसफर आपने बाकी दुनिया को दिए हैं, बाकी दुनिया को आपने पैसे दिए हैं, आए नहीं है आपके पास. टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है. फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता तो पॉजिटिव आइटम होता. ठीक है, सो सी भी गलत हो गया. तो सही आंसर क्या बचा? डी. पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. D is my correct answer. And now we are moving towards our last question of the day, which is again very important question. इंडिया चाइना पाकिस्तान से डेवलपमेंट एक्सपीरियंस के चैप्टर से ये क्वेश्चन ही आता है. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाएगा या फिर आपका इसमें सीयूईटी में भी आएगा, सीबीएसई में भी आएगा. मार्क माय वर्ड्स. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Great leap forward, cultivating land collectively, commune system, opening of industries in their homes, proletarian cultural revolution. It was actually students were sent to work and learn from countryside, which is very true. Economic reforms in China कब हुए थे? 88 में नहीं, 1978 में हुए थे. ईयर याद होने इसमें इंपॉर्टेंट है. तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? मेरा करेक्ट आंसर सी है. लेकिन बाकियों का मतलब क्या है ये देख लो. ठीक है, बाकियों का मतलब क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड इनिशिएट हुई थी 58 में, एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन मैसिव स्केल. पीपल वर एनकरेज्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज ऑन देयर बैकयार्ड्स. अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्री सेटअप करो. ग्रेट लीप फॉरवर्ड. कम्यून सिस्टम क्या था? मैंने कहा कलेक्टिव फार्मिंग. Under commune system, people collectively cultivated land. In 1958, there were 26,000 communes covering almost all farm population. Okay, then proletarian cultural revolution 66 से 76 तक चली थी 90s में. So under this revolution, students and professionals were sent to work and learn from countryside. Countryside भेजा गया था कि वहां से सीख करो और फिर हमारे यहाँ पे implement करो. And economic reforms in China, since China began to open up and reform its economy in 1978, GDP growth has averaged over 9%. More than 800 million people have lifted themselves out of poverty. Okay, so with this, your aspiration portal, friends, आप login करो. आपको बोर्ड हेल्पलाइन का ऑप्शन दिखेगा और बोर्ड हेल्पलाइन के ऑप्शन में आकर आपको ई क्लासेस दिखेंगी और आपको यहाँ पर एग्जाम स्ट्रैटेजी सेशंस दिखेंगे. बट ई क्लासेस में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पर शेड्यूल दिखेगा. ये तो लाइव क्लासेस होगा, ये रिकॉर्डिंग पोर्टल है. तो अगर आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत लोगों के डाउट आ रहे हैं कि यूट्यूब पे आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो आप एस्पिरेशन पोर्टल पे बोर्ड हेल्पलाइन में जाकर रिकॉर्डेड वीडियोस में जाकर रिकॉर्डिंग में यहाँ पर रिकॉर्डिंग वीडियोस आ रही होंगी. ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड सेशन है, जैसे आज का रिकॉर्डेड सेशन भी है, ये आपको यहाँ मिल जाएगा. मेरा सेशन नंबर देखिए, यहाँ पे जो भी सेशन नंबर, डेट है, सेशन नंबर लिखे हैं, उसके आगे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस उस दिन की मिल जाएगी. Okay, I hope I'm clear with this, and with this it's a wrap to our today's session. But I would want to before just stopping this one, I would want to suggest this to all of you कि आज का जो मैच द कॉलम का questions थे, उसमें एक आध question में हमने error देखा, which you can definitely correct because I have corrected, so you can also make the corrections required once. With this, we've completed match the column also. So अब जो new strategy में बचे questions that are statement based.
सो एक नेक्स्ट सेशन होगा जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे होगा, जहाँ पे 2 स्टेटमेंट भी होंगी, ट्रू फॉल्स भी होंगी एंड 4 स्टेटमेंट्स भी होंगी, जहाँ पे हम अगेन एलिमिनेशन टेक्निक यूज करने वाले हैं. एंड रेस्ट ऑफ द सेशंस नवनीत सर आपके लेने वाले हैं. आई नो आप लोग को उनके साथ भी बहुत मजा आता है. यू आर thoroughly enjoying your time with him as well. So we are looking forward to see all of you even in our live sessions. And if you're watching recordings, आप recordings देख के टेलीग्राम पे जो भी आपके डाउट है प्लीज आप पूछते रहिए, because we are there to help you. Okay, and the overall group is very active, so do join the telegram group through the link. And I really hope you're enjoying the sessions. Feedbacks are most welcome. Any problem you're facing, please let us know. And until the next time, see you everybody, and all the best, and prepare well. All right. Okay, thank you everyone.